سبق پڑھ پھر صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا، سبق پڑھ پھر عدالت کا، صداقت کا، شجاعت کا، لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا۔ اب میں مداحیہ کلام پیش کرنے کے لیے دعوت دیتا ہوں حسنین سن رائز پبلک اسکول ڈاؤنی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ غریبوں کی عزم کو آگے تک لے کر چلانے کے لیے آیا ہے امید کے جوان۔ غریبوں کی عزم کو آگے تک لے کر چلانے کے لیے آیا ہے امید کے جوان، ولولہ انگیز کے ساتھ دل بہلانے کے لیے آیا ہے امید کے جوان۔ KBDT کے قیمتی اسٹوڈنٹ اونچا اڑانے کے لیے، KBDT کے قیمتی اسٹوڈنٹ اونچا اڑانے کے لیے امید لے کر رفتار تیز سے آیا ہے امید کے جوان۔ دکھ بھری داستان لے کر مجبور ہوتے تھے غریب، دکھ بھری داستان لے کر مجبور ہوتے تھے غریب، شدت سے اور ہاتھ بٹانے کے لیے آیا ہے امید کے جوان۔ عہد ہے ان جوانوں کا غریب ہو اور ذہین ہو، عہد ہے ان جوانوں کا غریب ہو اور ذہین ہو، اکیلا اور ضائع نہیں کرے گا ان غریبوں کو۔ علم کے شوق رکھتے ہو ہوئے دشوار اگر گھر میں، علم کے شوق رکھتے ہو ہوئے دشوار اگر گھر میں، یہ شوق کو پورا کرنے کے لیے آیا ہے امید کے جوان، یہ شوق کو پورا کرنے کے لیے آیا ہے امید کے جوان۔ بدل دیتا ہے ایک قسمت غریبوں کی وہ بچوں کا، بدل دیتا ہے ایک قسمت غریبوں کی وہ بچوں کا، قسم سے اور عزم سے آیا ہے امید کے جوان، قسم سے اور عزم سے آیا ہے امید کے جوان۔ یہ مقصد استوار ہوئی اب ان شاہینوں میں، یہ مقصد استوار ہوئی اب ان شاہینوں میں، غریب قوم کو آگے تک لے کر چلانے کے لیے آیا ہے امید کے جوان۔ اسلام غریبوں کے عزم کو آگے تک لے جانے کے لیے آیا ہے امید کے جوان، غریبوں کے عزم کو آگے تک لے جانے کے لیے آیا ہے امید کے جوان، ولولہ انگیز کے ساتھ دل کو بہلانے کے لیے آیا ہے امید کے جوان۔ یہ تھے حسنین سن رائز پبلک اسکول کے جو اپنے امید کے جوانوں کو خراج تحسین پیش کر رہے تھے۔ اس کے بعد DDO ہائی اسکول ڈاؤنی جناب ابراہیم صاحب سے میں ملتمس ہوں کہ آپ اسٹیج پر تشریف فرما کر اپنے ذریعہ خیالات کا اظہار فرمائیں۔ DDO ہائی اسکول جناب ابراہیم صاحب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صدر جلسہ، مہمان خصوصی، دیگر معزز مہمانان اور میرے غیور اور پرجوش اور اپنے غریب قوم کے نوجوان کو، نونہالوں کو آگے نکالنے کے لیے پرعزم امید کے نوجوانوں، السلام علیکم۔ میں یہاں پہ مہمان گرامی کا شکریہ ادا کرنے کے لیے کھڑا ہوا ہوں، کیونکہ اس دور میں جو انسان عظیم ہوتا ہے وہ اپنے قیمتی وقت میں سے وقت نکال کر لوگوں کے لیے وقف کرتا ہے۔ لہٰذا آپ لوگوں کے وقت بہت قیمتی ہے، بہت قیمتی وقت کو نکال کر آپ مختلف جگہوں سے یہاں پہ تشریف لائے ہیں۔ اس پر میں جناب DC صاحب، AC صاحب، رضا اللہ صاحب اور میرے یہاں کے لیڈر جناب مقبول احمد صاحب، دیگر اداروں سے تعلق رہنے والے آفیسران کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں، کیونکہ آپ نے امید ویلفیئر سوسائٹی کے نوجوانوں کے حوصلے کو بلند کرنے کے لیے آپ یہاں پہ تشریف لائے ہیں۔ تو اس کے ساتھ ہی میں اپنے امید ویلفیئر سوسائٹی کے نوجوانوں کو بھی شکریہ ادا کرتا ہوں،
आप लोगों ने जब से ये तंजीम बनाई है, आप लोगों ने एजुकेशन के शोबे में बहुत ज़्यादा काम किया है और मुख्तलिफ़ किस्म के यहाँ पे आप फंक्शन में मुनाक़िद कराते रहते हैं, लोगों को जोड़ने की कोशिश करते रहते हैं। तो इस पर मैं आप लोगों का भी बहुत ही शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ कि मुस्तक़बिल में आप इस तरह बेहतर अंदाज में हमारे लोगों की, बच्चों की आप हौसला अफजाई और उनकी रहनुमाई फरमाते रहेंगे। यहाँ पर हम जो मसला अभी रज़ाउल्लाह साहब फरमा रहे थे, मुझे बहुत खुशी हुई। मुझे पता नहीं था कि आपका ताल्लुक़ भी एजुकेशन से है और 6 अरसे तक आप एजुकेशन से ताल्लुक़ रहे हैं, एज ए ट्रेनर रहे हैं। वाकई आपने यहाँ पे बहुत कम स्पीच की, लेकिन आपने मेरे अंदर जो एक यानी इनकलाब पैदा कर दिया, मेरे सोच में एक यानी झंझोट पैदा कर दिया कि हमें क्या करना चाहिए। वाकई यहाँ पे जो कमी है, यहाँ पे टीचर्स की यानी परफॉर्मेंस में कोई कमी नहीं है। इन्हें असातिज़ा कराम जो है हर वक्त काम करने के लिए, पढ़ाने के लिए तैयार रहते हैं। और यहाँ पे जो कमी है वो वालिदैन की है और मुआशरा वालों की है। पिछले साल जब अबू बकर साहब यहाँ पे एज ए असिस्टेंट कमिश्नर यहाँ पे मौजूद थे, तो उस वक्त मैं और मकबूल साहब ने उनसे रिक्वेस्ट की थी, यहाँ पे हर साल जो है टूर्नामेंट चलते रहते हैं, तो लिहाजा ये बंद होना चाहिए। मैं हालांकि अबू बकर साहब यहाँ पे नहीं है, फिर भी मैं उसका शुक्रिया अदा करता हूँ। उन्होंने हमारे कहने पर जो यहाँ पे पाबंदी लगाई, उनसे परमिशन लेकर यहाँ पे टूर्नामेंट करते थे। इन्हें साल वो टूर्नामेंट नहीं होते थे, क्योंकि टूर्नामेंट होने की वजह से बच्चों की पूरी तवज्जो टूर्नामेंट की तरफ होती है, ज़्यादातर वो खेल कूद में लगे रहते हैं। तो लिहाजा अभी हमारे मौजूदा असिस्टेंट कमिश्नर साहब में रिक्वेस्ट करता हूँ कि जो है बेजा सारा साल जो है टूर्नामेंट नहीं होना चाहिए। आप फिक्स कर दें कि इतना अर्सा जो है, इतने अरसे से इतने अरसे तक यानी यहाँ पे टूर्नामेंट होगा, बाकी सारा साल जो यहाँ पे टूर्नामेंट नहीं होगा। इस पर थोड़ी सी पाबंदी हो जाए तो आपकी मेहरबानी होगी। तो इसके साथ वालिदैन की भी यहाँ पे जो है कम तवज्जो है, यानी वो खेल कूद में लगे रहते हैं, टूर्नामेंट कर रहे होते हैं, लेकिन उनको पता नहीं होता है। तो लिहाजा यहाँ पे जो है मैं उम्मीद वेलफेयर सोसाइटी से उम्मीद भी करता हूँ कि आप जो है वालिदैन को भी आप इन्वॉल्व करने की कोशिश करेंगे, उनको भी आप झंझोड़ेंगे, उनकी जो खामी है या लाइल्मी है तो उनको जो है आप आगाह करेंगे कि आपके बच्चों को आगे ले जाने में आपका कितना यानी हिस्सा है और आपको कितना क्या किरदार होना चाहिए। इस बारे में आप वालिदैन को भी बुलाकर कभी आप फंक्शन करेंगे, मुझे उम्मीद है कि उन पर आप जो है रहनुमाई करेंगे। हमारे वालिदैन बहुत ही अच्छे हैं, लेकिन उनमें ये पता नहीं है, उनमें ये सोच नहीं है, उनमें ये समझ नहीं है कि हम अपने बच्चों को आगे ला जाने के लिए क्या करना चाहिए, यानी उनकी रहनुमाई कैसे करनी चाहिए, उनके पढ़ाई के मामले हमें क्या करना चाहिए। यानी उनको जो इस चीज़ का इल्म नहीं है, यानी अपने घर के काम को ज़्यादा तरजीह देते हैं, लेकिन पढ़ाई पे कम तवज्जो देते हैं। जब जैसे कि अभी रज़ाउल्लाह साहब जो प्रिंसिपल का वाक़या सुना रहे थे, वाकई वही माहौल इधर भी है, यानी वो अपने घर के काम को तरजीह देते हैं, लेकिन पढ़ाई पे कम तवज्जो देते हैं। यानी जब घर में कोई काम नहीं होता तो बच्चों को यहाँ भेजते हैं, अगर घर में कोई ज़रूरी काम हो जाए तो वो छुट्टी लेने के लिए यहाँ पे आते हैं। तो लिहाजा हमारे वालिदैन को जो है यानी उनकी रहनुमाई करने की हमें अशद ज़रूरत है। मुझे उम्मीद है मेरे उम्मीद वेलफेयर सोसाइटी के पुरअज़म नौजवान गयूर नौजवान आप जो उनकी रहनुमाई फरमाएंगे और यहाँ पे जो है एक ज़बरदस्त तालीमी माहौल पैदा करने में आप लोग जो है बहुत ही अहम किरदार अदा करेंगे। और यहाँ पे जो एजुकेशन में मसला है, वो एक जो बहुत बड़ा मसला वो है वहाँ पे टीचर्स की कमी है, वो PC4 का मंजूर ना होना है। ये हायर सेकेंडरी स्कूल की बिल्डिंग बनी हुई है और गर्ल्स में भी बनी हुई है, लेकिन वहाँ पे जो अप्रूव्ड लेवल है वो मिडिल है, लेकिन यहाँ पे जो हायर सेकेंडरी चल रहे हैं, तो इसकी वजह से वहाँ पे टीचर की शॉर्टेज है। तो यहाँ पर भी अभी बिल्डिंग बनी हुई है, लेकिन यहाँ पे हायर सेकेंडरी स्कूल की क्लासेस यहाँ पे होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे क्लास नहीं हो रही है। इसकी मेन वजह यहाँ पे टीचर कम है। तो टीचर कम होने की वजह से जो है हम इनको जो है हायर क्लास में जो है उनको दाखिला नहीं दे सकते हैं, उनको पढ़ा नहीं सकते हैं। अगर हमारे पास टीचर हो तो अभी आप फरमा रहे थे कि बिल्डिंग ना हो, बेशक हम उनको जो है वहाँ ग्राउंड में भी पढ़ा सकते हैं। आप हमारे छोटे से आप छत प्रोवाइड करें तो हम उनको पढ़ा सकते हैं, हम उनकी तालीम दे सकते हैं, उनको उनकी तरबियत हम कर सकते हैं, लेकिन हमारे पास टीचर ना होने की वजह से हम उनको कुछ नहीं कर सकते हैं। तो लिहाजा आप रज़ाउल्लाह साहब से भी मैं गुजारिश करता हूँ और मकबूल अहमद साहब से भी गुजारिश करता हूँ कि यहाँ पे स्कूल तो बहुत खुले हुए हैं, लेकिन यहाँ पे PC4 के ना होने की वजह से
टीचर्स की शॉर्टेज है, तो लिहाजा यहाँ से डिपार्टमेंट वाले जो है डिस्कोर बना के भेजते हैं, लेकिन जब वहाँ फाइनेंस में पहुँचता है तो वहाँ से रिजेक्ट होकर आते हैं। तो लिहाजा आप दोनों से गुजारिश है कि आप वहाँ तक यानी रसाई करके जब जिस जगह से वहाँ से रिजेक्ट होकर आता है वहाँ रसाई करके आप जो उसको अप्रूव करके लाएँ तो आप लोगों की बहुत बड़ी मेहरबानी होगी। तो इसके साथ मैं जनाब डिप्टी कमिश्नर से भी रिक्वेस्ट करता हूँ, यहाँ पे अभी उम्मीद वेलफेयर सोसाइटी है, तो इस तरह से हमारे यहाँ पे शहीद वेलफेयर सोसाइटी है यहाँ पे, तो वो यहाँ पे मुख्तलिफ किस्म के फंक्शन मुनाक़िद कराते रहते हैं। तो इसके अलावा यहाँ पे हम 23 मार्च मनाते हैं, 14 अगस्त मनाते हैं, मुख्तलिफ किस्म के फंक्शन यहाँ पे मुनाक़िद होते हैं, लेकिन हाल कम होने की वजह से हमें थोड़ा मसला होता है। तो लिहाजा जनाब डिप्टी कमिश्नर से रिक्वेस्ट करता हूँ कि या उम्मीद वेलफेयर सोसाइटी को या हमारे स्कूल वालों को जो है कोई टेंट दिया जाए ताकि हम बाहर जो है टेंट लगाकर इस फंक्शन को इससे भी बेहतर अंदाज में मुनाक़िद कर सकें। तो इसके साथ यहाँ पे मेरे स्कूल का अभी तक उस तरह साइड पे दीवार नहीं है, तो वो डिमार्केशन करना होना है, तो डिमार्केशन में थोड़ा सा मसला है, तो लिहाजा इसकी डिमार्केशन करने के लिए आप ऑर्डर इशू फरमाइए तो आपकी बहुत बड़ी मेहरबानी होगी। तो इसके साथ मैं आप सबका एक बार फिर शुक्रिया अदा करता हूँ। वस्सलाम। बहुत बहुत शुक्रिया DDO सब डिवीज़न दमोही जनाब मोहम्मद इब्राहिम साहब। रोशन है शम्मा इल्म खुदा के कलाम में, रोशन है शम्मा इल्म खुदा के कलाम में, नूरे अमल है उसवाए खैरुल अनाम में। अब मैं हमारे इस महफिल के रूह रवान चीफ गेस्ट असिस्टेंट कमिश्नर डिप्टी कमिश्नर जनाब शर्जील हफीज़ वट्टू साहब को डाइस पर दावत देता हूँ। आप सबकी पुरजोर तालियों में मोहतरम जनाब AC साहब, अकरम खान साहब, रज़ाउल हक मदनी साहब, गुलाम नबी साहब सोशल वेलफेयर ऑफिसर, एडवोकेट मकबूल साहब, उसके अलावा तुराबी साहब, और सबसे बढ़कर मेरे प्यारे बच्चों और बच्चियों, अस्सलाम वालेकुम। तो सबसे पहले तो मैं मुबारकबाद देता हूँ उम्मीद वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन को कि आजकल के दौर में जितनी भी ज़्यादातर नौजवान जो हैं वो ऑर्गेनाइजेशंस या NGOs बनाते हैं तो उनके ज़्यादातर सियासी मकासद होते हैं, लेकिन इस जो उम्मीद वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन ने टारगेट किया है, इन्होंने टारगेट किया है एजुकेशन के शोबे को, और एजुकेशन का शोबा वो सबसे आप समझ लें इम्पोर्टेंट शोबा है, जिसमें हमारे यहाँ जहाँ पे आप देखें बिल्डिंग्स तो बड़ी बड़ी बनी हुई हैं, हर जगह पे दूर दराज के इलाकों में भी स्कूल बने हुए हैं, लेकिन उसके बावजूद आपको वहाँ पे कहीं तो असातिज़ा की कमी मिलती है, कहीं हमारे असातिज़ा में डेफिनेटली वो काबिलियत की कमी होती है, कहीं पे कोई और रिसोर्स की कमी होती है, जिसकी वजह से हमारे जो बच्चे पढ़कर इन स्कूलों से निकलते हैं तो वो उस तरह मैच नहीं करते हैं उस तरह जैसे कि कोई स्कर्दू में पढ़ के निकलेगा या कोई खपलू में पब्लिक स्कूल से पढ़ेगा, तो एजुकेशन जो है उसमें थोड़ा सा डिफरेंस आता है। तो इन्होंने जो ये काबिज शुरू की है, डगोनी हमारा एक फार फ्लंग एरिया है, दूर दराज इलाका है, तो उसके लिए इनकी जितनी भी तारीफ़ की जाए वो कम है। ख़ास तौर पे पिछले 1-1.5 साल से कोरोना की वजह से हमारे जो स्कूल हैं वो बंद भी होते हैं, बार बार बच्चों की तालीम का बड़ा हर्ज हो रहा है। तो इस दौरान इनकी ये जो ज़बरदस्त काबिज थी कि इन्होंने क्विज़ कंपटीशन करवाया, जिस बहाने बच्चों को पढ़ने का भी मौका मिलता है, उसमें शिरकत का भी मौका मिलता है, और इस तरह की जो हम निसाबी सरगर्मियाँ होती हैं इससे बच्चों के अंदर कॉन्फिडेंस भी डेवलप होता है, उनका नॉलेज भी बूस्ट होता है। सिर्फ किताबें पढ़ने से या सिर्फ स्कूल में असातिज़ा के साथ क्लास रूम में पढ़ने से या बैठने से बच्चों की तरबियत मुकम्मल नहीं होती। जिस तरह रज़ाउल हक साहब ने भी कहा कि ये हमारी सोसाइटी का भी काम है कि बच्चों की जो तालीम है उसमें वो मोर देन 80% वो शराकतदार हैं, वालिदैन हैं और इस तरह के नौजवान हैं। इनका फ़र्ज़ बनता है कि बच्चों को एक्टिव रखें, बच्चों को तालीमी लिहाज से जहाँ पे कमी कोताही उनको महसूस हो रही है वहाँ पे वो अपना भी रोल प्ले करें, और जहाँ पे उनको ये ज़रूरत महसूस होती है कि उनको यहाँ पे इंतज़ामिया की मदद की ज़रूरत है, इंटरवेंशन की ज़रूरत है,
تو इंशाल्लाह वो भी हमसे रब्ता करें तो हम जो उस पर जिस हद तक मुमकिन हो हम इनके साथ पूरा ताउन करेंगे। अब चूँकि हमारे छोटे बच्चे बैठे हुए हैं यहाँ पे, तो अब कुछ बात जो है वो मैं आपसे करना चाहूँगा कि बड़ी बड़ी तकरीरें हो गई यहाँ पे, तो वो आप लोग अक्सर बोर भी हो जाते हैं इस तरह की। हम भी स्कूलों में होते थे तो बड़े लोग आके तकरीरें करते थे, आधी चीज़ हमें समझ आती थी आधी नहीं आती थी, हम बोर हो जाते थे। तो अभी जो बात करनी है ये आप लोगों से मुतल्लिक है। आप लोगों से मुतल्लिक बात ये है कि देखें, हमारा जो इलाका है गिलगित बल्तिस्तान, अल्लाह ताला ने इसको इतनी कुदरती खूबसूरती दी है कि इस तरह का इलाका पूरे पाकिस्तान में और कहीं नहीं। लेकिन यहाँ पे अभी आप बाहर सड़क पे निकलें तो आपको क्या नज़र आएगा कि आप लोग जब कैंटीन से कोई चीज़ लेते हैं, कोई बिस्किट लेते हैं, कोई चिप्स लेते हैं, तो उसका रैपर आप या ग्राउंड में फेंकते हैं या आप बाहर सड़क पे कहीं फेंकते हैं। तो सफाई जो है, कुदरती हुस्न जहाँ पे भी ज़रूर होता है तो वहाँ पे सफाई की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। तो आप लोगों ने अभी जब भी, आप लोगों से मेरी ये रिक्वेस्ट भी है, बड़ा भाई होने के नाते आपसे आपको मैं नसीहत भी ये करता हूँ कि आपका इलाका जो है इसका दारो मदार है कुदरती हुस्न के ऊपर। यहाँ पे चूँकि ये फार फ्लंग है तो उस तरह की अभी हमारे पास यहाँ पे वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी भी नहीं है, लेकिन आप लोगों का ये जो है फ़र्ज़ बनता है कि आपने अपने इलाके की खूबसूरती में पूरा जो है वो रोल प्ले करना है। तो इस वक्त DDO साहब बैठे हैं, प्रिंसिपल साहब गालिबन हैं या नहीं है, मेरी इनसे भी रिक्वेस्ट है कि हर 6 महीने बाद, साल बाद बच्चों के साथ कोई सफाई कैंपेन किया करें, क्लीनलीनेस ड्राइव किया करें, ताकि बच्चों में ये